بے شک جی اس لیے کہ ان کے ذریعے یہاں کام ہو رہا ہے بے شک دین و سنیت کا۔ تو اب یہ بتائیے آپ تقریر سننے کے لیے تیار ہیں؟ جی جی محبت کے ساتھ درود پاک سنائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ حامی دین متین رئیس الفقہاء والمحدثین سند المتکلمین تاج المفکرین سراج السالکین زبدۃ العارفین اعلی حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجات امام عشق و محبت دنیا سنیت کے امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش رواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا۔ دیکھو سبحان اللہ آپ کہتے رہیں گے اس لیے کہ سبحان اللہ میں کسی کے ابا کی تعریف نہیں ہے۔ مفتی صاحب سے پوچھئے، علامہ قاری شمیم سے پوچھئے، سبحان کے معنی پاک، اللہ میں نے اللہ، تو سبحان اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک ہے۔ اور یاد رکھو دیوالی کے زندہ دن مسلمانوں کہ آپ یہاں بیٹھ کر گھر میں جا کر دکان پر کھیت میں کھلیان میں آپ بائک پر فور ویلر پر ٹرین پر پلین میں جہاں جس جگہ رہ کر کے خدا کی پاکی کو بیان کرو گے۔ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم ہی خدا کی پاکی نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ ہمارا طریقہ طرز عمل تمتن ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہم اپنے خدا کی پاکی کا اعلان کریں۔ آپ کہیں گے پاکی کے اعلان کی ہمیں برکتیں کیا ملیں گی؟ تو سنو، جب آپ چلتے پھرتے اٹھتے جاگتے خدا کی پاکی کا اعلان کریں گے برکتیں یہ حاصل ہوں گی۔ رب کعبہ کی قسم کہ آپ کے دل پاک ہو جائیں گے، آپ کی زبانیں پاک ہو جائیں گی۔ دل اور زبان پاک کرنے کے بعد تم زمین کے کسی بھی خطے پر بیٹھ کر کسی بھی گوشے پر بیٹھ کر چاہے مکان ہو دکان ہو کھیت کھلیان ہو زمین کے کسی بھی خطے پر رکھ کر اگر اللہ سے عزت مانگو گے تو عزت ملے گی، شہرت مانگو گے تو شہرت ملے گی، حتیٰ کہ دل اور زبان پاک کرنے کے بعد اگر اس خدا سے جنت مانگو گے تو انشاءاللہ جنت ملے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت مفتی دلشاد رضا صاحب قبلہ اصلاحی معاشرہ کانفرنس و جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ حضرات میں آپ کا مزاج بھی جانتا ہوں، الحمدللہ پہلے بھی آپ نے بہت اچھے انداز میں سنا ہے اور آپ نے دل رکھا۔ ہمارے مولانا قاری شمیم صاحب نے کہا آپ کی تمنا خواہش ہے آپ آئیں، آپ کو بلایا جا رہا ہے، لوگ چاہتے ہیں آپ آئیں۔ ہم نے کہا چلیے، کمیٹی کے چاہتے ہیں، بستی کے چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں تو بالکل آئیں گے، اس لیے میں آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ تک پیغام پہنچایا جائے، آپ اس پیغام کو صحیح طور پر کہ سن کر کے جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ دو تین شعر سن لیجئے، آواز تو میری ایسی نہیں ہے لیکن آپ توجہ کے ساتھ کہ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ہماری ماں اور بہنیں بھی ٹھنڈ کے موسم میں بیٹھی ہیں، ان کی بھی ہمت ہے، اتنے آپ نہیں ہیں جتنے ماں بہنیں ہیں۔ اللہ ان اسلامی ماں اور بہنوں کو خاتون جنت کا صدقہ عطا فرمائے۔ حضرات ان کے تعلق سے بھی تقریر ہوگی، آپ کے تعلق سے بھی ہوگی، تسلی آپ رکھیں گے۔ اور مدینے سے جو محبت کرتا ہے، اور مدینے سے کون سنی ہے جو محبت نہ کرتا ہو؟ سنی کا تو معاملہ یہ ہے کہ رات کو سوتا ہے تو یہی دعا کرتے کرتے سوتا ہے، یا الہی
दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, जब सुबह को उठता है नमाज फज्र को पढ़ता है तब भी यही दुआ करता है, या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। इसलिए कहते हैं दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, अल्लाह में मुझे पसंद है, आमिना का लाल शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपकी इजाजत हुई हमारे अमजद भाई माशाल्लाह, जो बड़ी परेशानियों से हमें रहनुमाई करते हुए लेकर आए। अगर ये ना होते तो सारा जलसा हमारे रास्ते में उतर जाता। तलाश करते रहते कि भेवाली कहाँ है। हजरात भेवली 2-3 शेर और पढ़ दो, इजाजत है? इजाजत। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बजने वाला है लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा हो। सुभान। आप वाकई बहुत जिंदा दिल है। कहने वाले ने कहा है कि फर्शे जमीन पे अर्श का सीना पसंद है, फर्शे जमीन पे अर्श का सीना पसंद है, सारे जहां में मुझको मदीना पसंद है। सुभान अल्लाह। जिसको मदीना पसंद है वही बोले, बाकी खामोश रहे। फर्शे जमीन पे अर्श का सीना पसंद है, सारे जहां में मुझको मदीना पसंद है, और खुशबू गुलाबो मुश्क की अच्छी तो है मगर मुझको मेरे नबी का पसीना पसंद है। सुभान अल्लाह। खुशबू गुलाबो मुश्क की अच्छी तो है मगर मुझको मेरे नबी का पसीना पसंद है। अब कुछ लोग मुझे कम देख रहे हैं, मुफ्ती साहब मेरे रुमाल को ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन याद रखें कि रुमाल दिया नहीं जाएगा, इसलिए कि भी तोहफा है। लेकिन आप कहें तो मैं रुमाल से तकरीर शुरू कर दूं? इजाजत। या रसूल अल्लाह। भाई शमीम साहब आप बानिए जलसा है, आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे तो पूरा जलसा चला जाएगा। अच्छा माशाल्लाह बड़े खुश मिजाज है, खुश फहम है, खुश वक्त है, हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। और आका की हदीस पाक है जब मोमिन को देखकर मुस्कुराता है अल्लाह दोनों के मुस्कुराने पर सवाब अता फरमाता। सुभान अल्लाह। हमारे शाहकार तरन्नुम बुलबुल बाग़े मदीना जनाब मोहतरम मौलाना कारी लईक रज़ा साहब तिबड़ा मुरादाबादी ने एक रंग जमाया और ऐसा पढ़ा कि जब ये पढ़ रहे थे तो मैं नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ के मैं निकला तो मैं सुनता हुआ जा रहा था, तो मेरे दिल में आ रहा था कि हमारे मौलाना कारी लईक अहमद साहब का अंदाज ये है कि ये पहले जान को निसार करते हैं, फिर क़ज़ा को बहार करते हैं, नाक पढ़ते हैं शाहे बता की। लईक भाई भी क्या हंसी कारोबार करते हैं। क्या बात है। और तो कुछ नहीं है दामन में इनके हमारे आपके, और तो कुछ नहीं है दामन में, बस अपनी आका से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। और ऐसा किया इन्होंने। और मौलाना कारी गुलाम रब्बानी साहब किबला खतीब अहले सुन्नत का खिताब आपने समाअत किया, उन्होंने भी ऐसा रंग जमाया कि मैं कहने पर मजबूर हूँ कि साहिले दरिया से मौजों की रवानी ले गया, कैसा बादल था उड़ा के साथ। क्या बात है। अगर वही पानी आपके पास बाकी है तो उसको खर्च कीजिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान सुभान अल्लाह। रुमाल बेटा है असरा नहीं है फिर, और सर पे रुमाल टोपी कुछ रखो मेरे लाल, आवाज तो तुम्हारी बहुत बुलंद है माशाल्लाह। मैं रुमाल से शुरू करता हूँ फिर वहीं आता हूँ मदरसे पर। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी भेवली वालों ऐसा सुना या देखा कि बच्चा पैदा ना हुआ हो और बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया? आप भी करीब हो जाए, थोड़ा उस करीब आ जाइए, अच्छा लगता है करीब होते तो। बच्चा पैदा ना हुआ हो, बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया हो, बच्चा पैदा ही ना हुआ हो और बहुत बड़ा मास्टर। भेवली में तो ऐसा नहीं हुआ, बड़ा खामोश है, कहीं हो तो नहीं गया? नहीं हुआ। नहीं हो, इसलिए कि कभी रब्बे काबा की कसम ऐसा हो भी नहीं सकता, इसलिए कि आदमी पहले बुलंदी, बाद में आदमी पहले क़याम, बाद में आदमी पहले रुकू, बाद में आदमी पहले सुजूद,
जी इसी तरह कह ली आदमी पहले क़याम बाद में, आदमी पहले ज़कात बाद में, आदमी पहले हजरात रोजा बाद में, आदमी पहले हज बाद में, माइक पहले आवाज बाद में, आप देखें नवार आलम पहले मुफ्ती वक्त बाद में, आप देखें शौकीन रजा पहले नकीब हिंदुस्तान बाद में, लईक रजा पहले शायर आजम हिंदुस्तान बाद में, गुलाम रब्बानी पहले खतीब अहले सुन्नत बाद में, सूफी बासफा जाकिर पहले, सूफी बासफा बाद में। आप देखेंगे कि अब्दुल अजीज पहले, हाफिज मिल्लत बाद में, सैयद मोहम्मद पहले, मुहद्दिस आदम बाद में, हबीबुर रहमान पहले, मुजाहिद मिल्लत बाद में, मुस्तफा रजा पहले, मुफ्ती आसम बाद में, हामिद रजा पहले, हुज्जतुल इस्लाम बाद में, अहमद रजा पहले। आला क्या बात है बाबा, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हमारे अहले सुन्नत, जिंदाबाद, अल्लाह के आला हजरत, जिंदाबाद, हमारे आला हजरत। जिंदाबाद। और आप देखेंगे आगे बढ़िए तो आप देखेंगे अलाउद्दीन पहले, साबिर पिया बाद में, निजामुद्दीन पहले, महबूब इलाही बाद में, फरीदुद्दीन पहले, गंजे शकर बाद में, कुतुबुद्दीन पहले, बख्तियार काकी बाद में, मोइनुद्दीन पहले। और आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे कि अब्दुल कादिर पहले, गौसे आदम बाद में, और आगे बढ़िए हसन पहले, मुस्तफा बाद में, हुसैन पहले, शहीद आजम बाद में, और आगे बढ़िए अबू बकर पहले, सिद्दीक बाद में, उमर पहले, फारूक बाद में, उस्मान पहले, सुन्नुरैन बाद में, अली पहले, फातह खैबर बाद में, और आगे बढ़िए आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीउल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, सफीउल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में। मगर बेवाली वालों, मेरा आपका रसूल वो है कि जो रसूलुल्लाह पहले और आमना का लाल। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि जो रसूलुल्लाह पहले और अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम बाद में। इसलिए कहते हैं बोझ पे उसके मुकद्दर का सितारा होगा, हाँ, जिसने सरकार की रहमत को पुकारा होगा होगा, और बख्शवाएगा जो हर एक नबी की उम्मत। क्या बात है, हश्र में ऐसा नबी सिर्फ हमारा होगा, यही बात है। मौलाना कारी शौकीन रजा साहब नारा लगा रहे तो उसका जवाब दो, और जवाब देना चाहिए इसलिए कि नारा हमारी महफिलों की शान है, वकार है, अलामत है, पहचान है। बेशक, ये नारा ही तो नारा है कि जब 40वें हजरत उमर इब्ने खत्ताब मुसलमान हुए, मक्के की जमीन पर सहाबा ने इसी नारे को बुलंद किया हजरात, तो कुफ्फारे मक्का के दिल दहल गए। यही नारा मक्के से चला तो मदीने की जमीन पर पहुंचा, और मदीने से इसी नारे की दावत को लेकर हुसैन पाक जब करबला के मैदान में पहुंचे, और हुसैन के दीवानों ने, मस्तानों ने करबला की जमीन पर जब इसी नारे को बुलंद किया तो 22,000 यजीदियों को सरेंडर कर दिया, और यही नारा करबला से बगदाद पहुंचा, और बगदाद से ख्वाजा पाक लेकर के इंडिया में आए, और इसी शहर हिंदुस्तान में अजीजान मिल्लत इस्लामिया दिल्ली में आए, दिल्ली में आए, और दिल्ली से अजमेर का रुख किया। मुरीदों ने कहा सरकार कहाँ जा रहे हैं, कहा शहर अजमेर जा रहा हूँ, कहा सरकार हालात अच्छे नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है। शिहाबुद्दीन गौरी 3 मरतबा जा चुका है, शिकस्त खाकर वापस आया, सरकार आप शहर अजमेर ना जाए बल्कि दिल्ली में रुक करके दीन का काम करे, किसी और करिया और शहर में चले, या पहाड़ पर अल्लाह की सदाएं बुलंद करे। तो मेरे ख्वाजा आलम ने फरमाया, सरकार गरीब नवाज ने, ओ मेरे मुरीदों, तुम कहते हो कि दिल्ली में रुककर दीन का काम करो, किसी करिया और शहर में जाकर दीन की इशाअत करो। याद रखो मदीने वाले सुल्तान ने मुझे हिंदुस्तान का सुल्तान बनाकर भेजा है, और जो सुल्तान होता है वो अपना झंडा न किसी करिया में गाड़ता है, न किसी देहात में गाड़ता है, न किसी पहाड़ में गाड़ता है। सुल्तान अपना झंडा हमेशा राजधानी पे करता है, यही बात है, बाकी की बात है, हक बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जश्न दस्तार बंदी का मंजर भी आपको मुलाजा करना है। बेशक, इसी नारे की दौलत को लेकर ख्वाजा पाक जब शहर अजमेर में उतरे और
ख्वाजा के दीवानों ने इसी नारे को बुलंद किया तो राजा पृथ्वीराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया और यही नारा शहर अजमेर से चला तो दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से बढ़ा तो शहर कलियर में पहुंचा और कलियर से होता हुआ जब शहर बरेली में पहुंचा और आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ने जब बरेली की जमीन पर इसी नारे को बुलंद किया तो रब काबा की कसम ये नारा आज हर एक सुन्नी के दिल की धड़कन बन गया। इसलिए हम कहते हैं या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने नारा लगाया उसका बेड़ा पार। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नबी पहले सुन्नती नहीं, आप भी लगा सकते हैं जी हजरत। तो बात रुमाल की चल रही थी, इजाजत हो तो पेश करूं। बिल्कुल आता हो। सबके साथ एक मर्तबा कहें सुभान सुभान अल्लाह। ये खजाना ढूंढने वाला खजाना ढूंढ लेता है, हाँ, मोहम्मद के दीवाने को दीवाना ढूंढ लेता है। और दीवाना ही बनना है तो ऐसे दीवाने बनो जैसे हजरत बिलाल थे। क्या बात है। और दीवानगी पर इनाम क्या दिया गया आप जानते हैं? बस दीवानगी का सिरा क्या मिला? नबी से जो इश्क कर बैठे थे नबी ने हजरत उसका इनाम बिलाल को दुनिया ही में क्या दिया। आप देखिए 5 मिनट में जब यही मक्का फतेह हुआ हजरत काबे के करीब मुस्तफा पहुंचे, मेरे पैगंबर ने फरमाया अबू बकर कहाँ हो? सरकार हाजिर। उमर सरकार हाजिर। उस्मान सरकार हाजिर। अली सरकार हाजिर। मेरे पैगंबर ने फरमाया ये बताओ कि मेरा आशिक सादिक बिलाल कहाँ है? क्या फरमाया? मेरा बिलाल कहाँ है? सरकार बिलाल तो नहीं है। फरमाया बिलाल को बुलाया जाए। बुलाया गया, सरकार के करीब पहुंचाया गया। मेरे पैगंबर ने फरमाया बिलाल करीब आओ, बिलाल करीब आओ। सरकार ने फरमाया बिलाल और करीब आओ। बिलाल और करीब आए। मुस्तफा ने अपनी अंगुष्ठ पाक का इशारा इसी काबे की तरफ किया और कहा बिलाल इसे काबा कहते हैं, काबा। हाँ या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल इस काबे का तकद्दुस, या रसूल अल्लाह लाजवाब। बिलाल इसका एहतराम, या रसूल अल्लाह लाजवाब। बिलाल इसकी असमत, या रसूल अल्लाह लाजवाब। बिलाल इसका एहतराम, या रसूल अल्लाह लाजवाब। बिलाल इसकी तकरीम व तौकीर, या रसूल अल्लाह लाजवाब। मेरे पैगंबर ने फरमाया ऐ बिलाल सुन ले, इस वक्त में पूरी रोए जमीन पर इस काबे से मुकद्दस कोई चीज नहीं। क्या बात है भाई, वाह। लेकिन बिलाल ये इंसान है, ये दुनिया के लोग हैं जो इंसानियत को बढ़ाते हैं। लेकिन मेरे बिलाल तू आज ही इसी काबे की छत पर चढ़कर खुदा की किबरियाई का नगमा बुलंद करके पैगाम दे दे कि ये दुनिया के और लोग हैं जो इंसानियत को घटाते हैं और ये मोहम्मद का लाया हुआ निजाम इस्लाम है जो इंसानियत को बढ़ाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सरकार ने कहा बिलाल काबे की छत पर चढ़कर खुदा की किबरियाई का नगमा बुलंद किया जाए। अब बिलाल चले, एक कदम रखते हैं, मुड़ करके मुस्तफा की तरफ देखते हैं, दूसरा कदम रखते हैं, फिर सरकार की तरफ देखते हैं। हमने आलम तसव्वुर में पूछा ऐ नबी के आशिक सादिक बिलाल, नबी का हुक्म है काबे की छत पर चढ़कर खुदा की किबरियाई का नगमा बुलंद किया जाए। लेकिन आप मुड़ मुड़ करके क्या देख रहे थे? तो हजरत बिलाल की रूह पाक आज भी जवाब देती है और नबी के दीवानों सुनो, मैं मुड़ मुड़ कर देख ही नहीं रहा था बल्कि यूं अर्ज कर रहा था कि या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल। क्या बात है भाई, वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वही वाह, माशाअल्लाह।